Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important video for class 11th students who just reached from class 10 to 11th. As you all know, due to corona pandemic, many examinations are postponed and many are yet to cancel. In order to that criteria, your board examination are actually cancelled. For class 10th students, your board examination is cancelled. So no doubt you are from class 10 to 11. If you are choosing the biology, then best idea. In this video lecture, we are discuss what are the introduction of biology. In previous online class, you have seen what are the scope of biology. Keep in mind, little more knowledge I will provide in this video lecture in online class, but keep in mind, introduction is very necessary. I have begin our topic and chapter in previous video lecture. No doubt, many more was absent in previous online classes, and many more are still wait for the confirmation of CBSE, that is what are the criteria to promote from class 10 to 11. So no wait, I think no any wait for the CBSE and their confirmation. If you are class 10th student, then undoubtedly you are in 11th, no doubt. So without delay timing, you have to choose the board exam, you have to choose the class 11th, any stream. If you are selected biology, then be with video lecture. Actually, in previous video lecture, in previous online class, I have introduced the basic knowledge regarding biology and its syllabus. There are 70% marks will will come from the theory, and 30% marks overall 100% was related to the practical examination. It means in biology class 11th and 12th, you will have the 100 marks question in each paper, whether you are the biology, physics and chemistry. Each 100 marks will be related to, differentiated into two basic category, the 70 from theory and 30 from practical. So without any hesitation, you are free to ask any kinds of question in comment box. I will provide you what are the exact solution. So without delay timing, let back in online class and discuss the basic introduction that I am going to begin the online class today. If you are new with this channel, if you are new with online class, then you can frequently ask in the previous classes about the previous classes. So without delay timing, let back in online class and discuss each and every topic, each and every points related to the introduction and the first chapter of our class 11, that is the living world. अगर जो लोग कल जुड़े थे वो लोग जानते होंगे, कल मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास जो है एक फेयर कॉपी होनी चाहिए। फेयर कॉपी आज ही से बना लो तो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन क्लास का मतलब हम दूसरी चीजें कर ही नहीं सकते। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में सिर्फ पढ़ाई होगी, क्योंकि तुम्हारा भी डेटा जा रहा है, टाइम जा रहा है, मेरा भी डेटा टाइम जा रहा है, इसलिए हम लोग एक एक टॉपिक को धीरे धीरे निपटाते जाएंगे। तो हमारा जब तक स्कूल खुलेगा तब तक हमारा कुछ टॉपिक भी निपट जाएगा। सबसे बड़ी टेंशन ये है कि एग्जामिनेशन आपके पोस्टपोन हो गए, एग्जामिनेशन अब होंगे ही नहीं, कैंसिल हो गए हैं, इसलिए आप बिना एग्जाम दिए ही 11th में आ गए हैं। कोई डाउट नहीं है, चाहे आप 40%, चाहे 60%, चाहे 80%, चाहे 90%, कितना भी परसेंट पाइए, आप 11th में आ गए हैं। इट इज ट्रूथ, बट what is our priority? Our priority is to describe, and our priority is to begin our next class, that is class 11th. ठीक है, क्लास 11th के बारे में सबको सोचना है, क्योंकि आप 10th में अभी नहीं रह गए हैं, अब आप प्रमोट हो चुके हैं, सर्कुलर आ चुका है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, इसलिए अब किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। कल मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया था। टॉपिक क्या था? आपके पास कॉपी एक मोटी सी होनी चाहिए 11th के लिए, क्योंकि अब 11th बायोलॉजी एक सब्जेक्ट हो गया है। 10th में बायोलॉजी एक सब्जेक्ट का पार्ट था, उसका नाम था साइंस। अब बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इसलिए बहुत सारी चीजें तुमको आगे प्रिपेयर करना है, बहुत सारी चीजें आगे समझना है। ठीक है, ये समझ लो सब लोग कि हमको आगे क्या करना है। यही स्कोप मैंने आपको दिया था। कितने लोग स्कोप ऑफ बायोलॉजी मैंने जो दिया था कर लिए हैं कॉपी में? ये आपको करना है। बायोलॉजी के फ्यूचर में स्कोप क्या है, बायोलॉजी के फ्यूचर में स्कोप क्या है, इसको मैंने कई लोगों को दिया था और बोला था इसको आपको करना है। स्कोप ऑफ बायोलॉजी, लिसन, ये आप चाहे तो फेयर कॉपी में कर लें या फिर आप पीसी कॉपी में कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आवर फर्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ बायोलॉजी। इसको मैंने बोला था इसको करने के लिए घर पे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग कर लेंगे। मेडिकल सेक्टर में, नॉन मेडिकल सेक्टर में बायोलॉजी के बहुत बड़े यूज है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, अगर आप दवा के सेक्टर में जाना चाहते हैं तो भी उसमें बायोलॉजी के एडवांटेज है। बायोटेक्निकल सेक्टर में जाना चाहते हैं, वैक्सीनेशन, वैक्सीन इंडस्ट्री में, उसमें भी बायोलॉजी के स्कोप है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बायोलॉजी के स्कोप है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। इसके अलावा डॉक्टर में भी आप जानते हैं, आंख, नाक, मुंह, कान, गला, जितने भी ऑर्गन है सबके अलग अलग डॉक्टर हैं, तो अलग अलग डॉक्टर के अलग अलग कोर्स है। ये सबको जान लेना चाहिए कि बायोलॉजी के स्कोप कितने एलेबोरेटेड है। आवाज, वीडियो और ऑडियो कितने लोगों को आ रही है? हैंड रेज करके बताओ भाई। ऑडियो वीडियो कितने लोगों को आ रही है? वेरी गुड, विजय लक्ष्मी चौरसिया। तो ये पहला स्कोप एंड एडवांटेज ऑफ बायोलॉजी, ये सबको घर से कर लेना है, इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, सिलेबस का नहीं है। इसको मैंने दिया था आपको, अपने लेवल पे कर लेना है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू बैक इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस। Introduction. You all know in class 11th biology is not a single part of subject, it is only subject. In class 10th, when you are in class 10th, then biology was the part of science. But keep in mind, the introduction we are going to discuss about what are the biology actually. Listen carefully. Actually, biology is the subject, बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट, यानी बायोलॉजी हमारा 11th में क्या है? एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोड 044, ये सबको याद रखना है। ठीक है, नाउ बैक टू द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। एज यू ऑल नो, बायोस मीन्स द लिविंग बीइंग, बायोस मीन्स द लिविंग बीइंग, एंड लॉगस मीन्स टू स्टडी। कीप इन माइंड, लॉगस मीन्स टू स्टडी। It means study of living being, study about me, about you, about cow, buffalo, or about the lion, tiger is known as biology. It is very clear, छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो बायोलॉजी का मतलब, छोटे क्लास के टीचर बताए होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे। बायोलॉजी का सिंपल मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, ये सबको याद होना चाहिए। स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक है, 11th पर्पज में मैंने कल बोला था, द फर्स्ट यूनिट्स ऑफ क्लास 11th इज डाइवर्सिटी अमॉन्ग लिविंग बीइंग, डाइवर्सिटी अमॉन्ग लिविंग बीइंग और डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग। इट इज आवर यूनिट 1। यूनिट 1 ऑफ क्लास 11th इज डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग, डाइवर्सिटी इन living being. Keep in mind, diversity in living being means on the earth where the living being exists, all the part of earth is known as biosphere. यानी अर्थ के जिस हिस्से तक कोई लिविंग बीइंग आपको मिल जाएगा वो पार्ट क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर। ठीक है, डीप इनसाइड द सॉइल और अबव द ग्राउंड, इट मींस इनसाइड द एयर, इनसाइड द वाटर, there are millions of the microscopic, macroscopic living organisms exist. They all are actually included in the zone of biosphere. Keep in mind, diversity का मतलब क्या हुआ? वैरायटी। मैंने कल के टॉपिक पे इसको डिस्कस किया था। when you are visit in a particular shop and you will find only one types of cloth, that is not diversity, that is only the unique things are there. Keep in mind, when you are visiting in a particular shop, find only one type of cloth, that will be not fair for you. When you are in the mall, you will find variety of objects, variety of cloth, food and many more. There will be diversity. Here, when the God formed living being on earth, there will be not a single living being. Not only human being exists on earth, not only neem plant exists on earth. There are a broad range of animals, there are a broad range of plants exist. That is actually known as diversity. I hope your concept regarding diversity
was over study. There is no any problem related to diversity. That was actually in class 10th also. ये क्लास 10th में भी था। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हैंड रेज करके बताओ भाई, क्लास 10th में आप लोग पढ़े थे डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी के केस में था, बायोडाइवर्सिटी के नाम से था। चलो, बहुत सारे लोग इसको पढ़े थे, बहुत सारे लोग इसको आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो कल मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था, कॉपी सब लोग बना लेंगे एक मोटी सी, जिसमें हम नीट पीएमटी तक की चीजों को भी ऐड करते जाएंगे, ठीक है। नीट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन मेडिकल सेक्टर का नीट, और हमारा आईआईटी पीएमटी किसका होता है? इंजीनियरिंग का। तो आपको अगर नीट देना है तो आज ही से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, हम उसके रिगार्डिंग नोट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग इज द यूनिट नेम, इट मींस मे बी मैनी लेसन्स आर देयर, कीप इन माइंड। हमको पूरे क्लास 11th में सिर्फ 5 यूनिट पढ़ने हैं। कितने यूनिट पढ़ने हैं? ओनली 5, सिर्फ 5 यूनिट ही पढ़ने हैं सबको। 5 यूनिट से इधर उधर कोई यूनिट नहीं है। 5 यूनिट 11th में, 5 यूनिट 12 में, और ये 10 यूनिट मिलकर हम नीट का एग्जामिनेशन देंगे। जब नीट इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, उसको आपको क्वालिफाई करने के लिए 10 यूनिट बायोलॉजी का 5 11th और 5 12 से पढ़ने होंगे। मैंने कल बोला था आपको कि 5 यूनिट 11th का मिलके कुल कितने चैप्टर कवर करते हैं? टाइप करके बताओ तो जल्दी। कल मैंने समझाया था 11th में जो 5 यूनिट है उसमें कुल कितने चैप्टर आते हैं? टाइप करके बताओ जल्दी। 11th के 5 यूनिट बायोलॉजी के मिलके कितने चैप्टर को कवर कर रहे हैं? कल मैंने समझाया था, इसको लिख के टाइप करके हर चीज से। तुम भी बताओ तो, अपने चैट बॉक्स में टाइप करो, मुझे मिल जाएगा आंसर। वेरी गुड विजय लक्ष्मी चौरसिया, कल ये ज्वाइन की होगी तो पढ़ी होगी। कुल 22 चैप्टर है, ये भी क्लियर है, इससे मोस्ट चैप्टर कट जाएंगे क्योंकि हमारा पेंडेमिक कोरोना का और आगे जाने वाला है। तो जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अगर हम इस बात का वेट करते हैं कि हमारा कल स्कूल खुलेगा तो हम स्कूल में आएंगे पढ़ेंगे, तब तक ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे, तो ये आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, ठीक है। ये पेंडेमिक कब अपने वेब्स में हाई पीक पे रहेगा, कब लो पीक पे रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए जैसा हमारे लिए एडॉप्ट है, जैसा कंडीशन बन रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं। जब कंडीशन नॉर्मल होगा तो स्कूल आएंगे, स्कूल आने पे हमारे पास टाइम शॉर्ट रहेगा तो हम लोग बाकी बचे हुए चैप्टर को कवर करेंगे, न कि प्रीवियस चैप्टर को, ठीक है। तो जो हम चैप्टर पढ़ा देंगे, जिस टॉपिक को हमने रिवाइज करा दिया है, जिस टॉपिक को हमने बता दिया ऑनलाइन क्लास में, वो सिर्फ जो है रिवीजन होगा, वो भी बाकी चैप्टर कवर करने के बाद। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हैंड रेज करके बताओ भाई, वॉइस आ रही हो तो, वीडियो आ रहा हो तो। वेरी गुड निशा यादव, वेरी गुड। बाकी लोग कहाँ हैं? वेरी गुड। चलो आते हैं नेक्स्ट की हम बात करें, विजय लक्ष्मी। यूनिट 1 हैज 4 चैप्टर। I have introduced you the 4 chapter related to unit 1. The first chapter, the living world. Second chapter, biological classification. Third chapter, plant kingdom. Fourth chapter, animal kingdom. मैंने कल इसके बारे में डिटेल बता दिया था। Now we are going to discuss our first chapter of class 11, that is the living world. Keep in mind. The living world. Put heading, the living world. Listen carefully. If you have made heading on your copy, then this should be the beginning of our chapter and you may write it on your prayer copy. आप आज ही से अपनी कॉपी पे इसको लिखना चालू कर दीजिए, किसी चीज का वेट नहीं करना है, एक्स्ट्रा चीजें कुछ नहीं। नोट्स हम इसी के अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लास के थ्रू आपको बनवाते रहेंगे, प्रोवाइड करते रहेंगे। इट इज बेटर फॉर यू। लिसन, ध्यान देना है, आज ही से आप अपने टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए, आज ही से अपना नोट्स। तो ये हमारा चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। मैंने कल इंट्रोडक्शन बताया था, आप भी पहला टॉपिक इसका लिखेंगे, इंट्रोडक्शन।
पहला टॉपिक क्या है, पहला हेडिंग क्या है, इंट्रोडक्शन. एंड व्हाट यू विल लर्न द इंट्रोडक्शन, लिसन केयरफुली. You will learn about introduction related to the living world, that is the world of living on the biosphere is known as the living world. So introduction will be your homework. It is about 1 to 5 lines. There is no need to write more detail about the introduction. Keep in mind, introduction is related word with the living world. So what you will learn inside the heading of introduction, keep in mind, in heading of introduction you will write detail about the features of living being and their distribution and their unique characteristics. Means इसमें क्या क्या लिखेंगे, as we know that the object that can breathe, that can have process of nutrition, that can have growth, that can perform the reproduction, excretion are called as living beings. They all are actually distributed throughout the very specific area of earth called as biosphere, and that biosphere consists different groups of living beings. They may be microscopic viruses and macroscopic giant blue whale. So these world of living being is called living being. तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है. ठीक है, आप चाहो तो मेरी वॉइस ऑडियो स्क्रीन रिकॉर्डर है, जैसे भी इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो. ठीक है, इट इज क्लियर. हैंड रेज करके बताओ, इंट्रोडक्शन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी. इसमें फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग लिखेंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन एरिया को हम बोलते हैं बायोस्फीयर. ये भी थोड़ा, ये आपका अपने ऊपर लिखना है, ऐसा नहीं है कि इसको हम बना के नहीं लिख सकते, इसको बना के भी लिख सकते हो, बना के ही लिखना है.